Hello everybody, welcome back to Understand UPSC and thank you for your overwhelming response on the GS1 and 2 papers, and it was great to see a lot of you reaching out in our DMs and emails and telling that how the GS1 and 2 sessions have helped you understand the answer writing structure and the decoding of questions. So thank you Sakti for that and welcome once again. Thank you so much, sir. Thank you for having me. And GS paper 2. We'll be decoding the GS paper 3 today as well. This is the paper of 2024 mains itself. My idea, like in every session, is just to let you all know how I approach this paper. Now, before we start, I would also like to mention that, there are certain things while we are going for our preparation, we must be aware of. And that is what I mentioned in the first discussion. That was about our, basically the syllabus decoding. So here, if we talk about GS paper 3, there are 5 subjects here. When I say 5 subjects, these are what? These are that environment is there along with disaster management first. We also have science and technology. Along with that, we have economics. With economics, we also have internal security. So when I talk about this, basically what happens or what is the main issue with GS3 is, first is the lengthy syllabus, and every subject will have so many sub-dimensions, so many subtopics. So the overall preparation for this is bulky. Second thing that I would like to highlight here is that this paper is very much current oriented. When I say current oriented, there is no set way to go ahead with GS paper 3. Why I'm saying so is because, see, here is science and technology, environment. These two are solely current affairs based subject. ठीक है, यहाँ पे कोई syllabus नहीं है, be it prelims, be it mains. You do not have a set syllabus for these two topics. If you talk about economics, that is why the paper, or we can say the nature of GS3 is very dynamic. One of the major reason why they have been very average score in GS paper 3, I think, is that only. Initially, what I felt UPSC did was making it more current oriented. So इनका average वही 80 से 95 के बीच में it will come and reside every year. But now in 2024, I also came across something very unique, is that now they are not just asking very dynamic questions, but they are also asking specific. There have been something direct questions on labor codes. Now, if you don't know the specifics of that, जितना भी generic answer देख लो, marks मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. Because in UPSC, this is a total myth कि कुछ भी लिख के आओ marks मिलेगा. Because whatever is asked, what you need to write. ठीक है. अब also there is one thing before I start, I would like to mention कि भाई मेरे खुद के बहुत अच्छे marks नहीं थे GS3 में. So I was not I might not be the one to tell you how to score good, but I am just here to let you know how I approached my paper. So that is it about. Is enough. हाँ, ठीक है. इसके आगे I don't want to go कि भाई ठीक है marks basis पे, but I'm telling you initially only कि कम थे मेरे marks. Alright. So here if we talk, एक तरीका है इसमें that I have witnessed कि पहले 2 questions they have it from the economics part, next 2 they'll have it from, I think, the agriculture part, then 2 questions from science and tech, then your internal security, geography, मतलब अपना history, environment, etc. etc. तो ये एक set pattern है कि 10-10 वो, क्योंकि 5 subjects are there only, there'll be 2 questions each from every subject for 10 marker, and then there'll be 2 questions each from every subject on 15 marker. So एक तरीके से आप देख लो तो हर subject से there'll be 4 questions in this paper. तो अभी आप देख रहे हो कि number of questions that they are going to ask and the syllabus that is, उसमें बहुत ज्यादा वही है कि आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, and the output here is going to be on relatively the lower side. तो ये मैंने notice करा था. Okay, so let's get started with question number 1. Now here, if you talk about economics, you talk about agriculture, in those subjects में you will have a very good edge if you quote your eco survey or you quote the budget that has been there for the respective years. That will make your answers look very credible, because वही है आपका economics के लिए, I think there is no better source to go ahead with it. And every year in budget and eco survey, agri is a separate topic. प्रॉपर एग्रीकल्चर पे डिस्कशन होता है, बी इट योर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, बी इट बेसिक कि भाई डबलिंग फार्मर्स इनकम हो, या फिर आपको कुछ भी कोई भी स्कीम्स हो फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी इट इंश्योरेंस, बी इट एनीथिंग, ऑल ऑफ दैट इज कवर्ड वेरी नाइसली एवरी ईयर इन दी बजट. तो यहाँ पे मैंने मोस्टली यूज बहुत ज्यादा किया है बजट और इको सर्वे को, जस्ट लाइक इन अदर पेपर्स. क्वेश्चन नंबर 1, इफ यू लुक एट द क्वेश्चन वाज टू एग्जामिन द पैटर्न and the trend of the public expenditure on the social services in the post-reform period in India, to what extent this has been in consonance with the achieving the objective of inclusive growth. Now, if you look at the syllabus, this is a keyword directly from the syllabus. And when we talk about inclusive growth, this has become a reality post
1947 पर से, क्योंकि जब गवर्नमेंट व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस उसके बाद गवर्नमेंट स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ. उसके पहले ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा वी हैड इश्यूज. कुछ रिफॉर्म्स लिए गए थे, बी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स दैट हैव बीन टेकन, रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, देयर हैव बीन सेवरल रिफॉर्म्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स दैट द गवर्नमेंट वाज फोकसिंग ऑन. बट पोस्ट 1991 दैट वी कॉल्ड एज द एलपीजी रिफॉर्म्स, इसके बाद जो मेजर चेंजेस हैं दैट हैव बीन विटनेस्ड इन द कंट्री. सो हियर फर्स्ट आइडिया वाज टू अंडरस्टैंड कि एक तो पहली बात ये था कि कीवर्ड डायरेक्ट सिलेबस से था, तो योर जो हम कह सकते हैं कि पैरामीटर्स और दैट इज शुड ऑलरेडी बी प्रिपेयर्ड. एक टेम्पलेट आपका इंक्लूसिव ग्रोथ पे ऑलरेडी होना चाहिए था. एंड इंक्लूसिव ग्रोथ वन इंपॉर्टेंट एरिया इज ओनली योर सोशल सेक्टर. तो अब इसमें आप इंक्लूड कर लो सारी सेक्शंस हैव टू बी इंक्लूडेड इज व्हाट. अब सोशल सेक्टर में क्या क्या आ जाएगा? इफ यू टॉक अबाउट एवरी फ्रॉम जेंडर बेस्ड हो या फिर यू नो इनकम बेस्ड क्राइटेरिया हो, बीपीएल्स हो या मिडिल income families. So all of those stakeholders have to be included here. This answer I answered based on the stakeholder approach. ठीक है, तो पहले अगर मैं बात करूं, इट इज आस्किंग अबाउट द ट्रेंड जो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहा है इन सोशल सर्विसेज. बजट में एक एरिया इज देयर ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दैट प्रॉपर, कि भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना है, आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट का व्हाट इज द टारगेट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर दैट रिस्पेक्टिव एरिया, कि भाई एजुकेशन पे, R&D पे क्या क्या गवर्नमेंट फोकस करना चाह रही है. इनकी लाइक अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ पॉलिसी our target is of 2% of the GDP should be the expenditure on health. But अभी हमारा वो 0.7% पे है somewhere around. तो ये चीजें हैं, ये बजट में को सर्वे में खुद ही हाईलाइट होती है. तो सोशल सेक्टर्स को with respect to inclusive growth, I picked up those dimension as mentioned and I tried picking up the data schemes, क्योंकि they're asking the pattern and trend directly कि भाई क्या expenditure रहा है. तो इस वजह से उसके बाद you have to evaluate क्या ये इसके साथ consonance में है या नहीं. तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया जो इको सर्वे ने इवैल्यूएट किया था, जो बजट में मेंशन था. और जब ये कंसोनेंस वाली बात आई, देन आई स्टार्टेड कॉन्ट्रडिक्टिंग. अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी ये टारगेट है, बट स्टिल वी आर हियर. अकॉर्डिंग टू एजुकेशन का हमारा टारगेट है 2% हो R&D पे, बट स्टिल इट इज दिस मच. तो वो जो लूप होल्स है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं. एंड आई थिंक जहां आप लूप होल्स आइडेंटिफाई कर रहे हो, एटलीस्ट 2-3 वे फॉरवर्ड्स देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन गिव हाउ थ्रू यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू लाइक यू नो इंक्लूड दिस. जो नेशनल हेल्थ हमारी जो हेल्थ पॉलिसी है उसमें भी आयुष्मान भारत का डिजिटल आ गया, एजुकेशन में भी डिजिटल, ये सब करके गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रीच टू मोर ऑफ द पीपल इन ऑर्डर टू मेक इट मोर अफोर्डेबल, एक्सेसिबल. वही 3 A's जो होता है वो आप करके, तो कीवर्ड्स, फ्रेजेस, इसके थ्रू हाउ आई बेसिकली आंसर्ड दिस. मुझे क्या लगता है कि whenever we see ये चीजें, तो क्योंकि हमने सेकंड पार्ट में एनालिसिस पूछा था और मोस्टली ये होता है कि ये नेगेटिव ही है, क्योंकि भाई उतना जितना डिजायर्ड है उतना हो तो नहीं रहा है. तो ये आंसर आपका एक नेगेटिव टोन पे एंड ना हो. ठीक है, दैट इज व्हाई यू हैव टू इंश्योर कि आपका क्या तो कंक्लूजन बहुत ही बैलेंस्ड हो, कि दो यू आर एंडिंग इट इन अ वे कि भाई आपने नेगेटिव एनालिसिस कर रखा है कि इतना रिक्वायर्ड है, कुछ लूप होल्स या गैप्स हैं, बट स्टिल इन कंक्लूजन यू मेंशन हाउ थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट इज टारगेटिंग इन ऑर्डर टू कम लाइक मोर क्लोजर टू द टारगेट्स or whatever we are having. So this was about question number 1. इसमें भी बहुत सिंपल सा फंडा है ना कि टू व्हाट एक्सटेंट लिखा है, तो ये आइडेंटिफाई करना है कि वो खुद ही पूछ रहे हैं कि आप इसका पॉजिटिव मतलब अचीवमेंट्स, उसके नेगेटिव्स बताओ. हाँ. तो वो तोड़ना ही पड़ेगा. यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू 3 पार्ट्स. पहला पार्ट वो, अच्छा इसमें पैटर्न और ट्रेंड को तोड़ने की जरूरत नहीं है. नहीं, ये तो एक ही बन जाएगा. अब देखो इशू क्या है, अगर हम इसको चाहते, दिस वुड हैव बीन अ वेरी गुड 15 मार्कर मुझे जहां तक लग रहा है. आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि इससे क्या हो जाता है ना कि नाउ अगर आप बहुत सारे सब पार्ट्स जनरेट कर लो तो आप सब में इनफ डायमेंशंस नहीं नोट करोगे, वो आंसर वैसे ही. बट यहाँ पे इसीलिए अब इसको भी अगर आप ब्रेक कर दो, फिर इसको भी आप पॉजिटिव में और नेगेटिव में, फिर उसके बाद एक वे फॉरवर्ड भी लिखो, फिर एक कंक्लूजन, तो वो 10 मार्कर में उतना स्पेस है ही नहीं. दैट्स व्हाई गो विद दिस एज अ सिंगल कीवर्ड. एक्सटेंट में आप बता सकते हो और थोड़े से कर सकते हैं. Basically look much better. Perfect. So yeah, second thing if we talk about is, the second question is again from the economics only. What are the causes of persistent high food inflation? This is what I was saying कि पहले क्वेश्चन होता था इन्फ्लेशन पे, पहले क्वेश्चन होता था CPI, WPI पे. अब ये बहुत ही स्पेसिफिकली दे वेंट ऑन टू फूड इन्फ्लेशन. और फूड इन्फ्लेशन एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है. अब यहाँ पे व्हाट यू कैन सी इज, लेट्स रीड द होल क्वेश्चन. दे हैव आस्क्ड द कॉजेस. What is the cause? मतलब इन्होंने ये तो कह दिया है कि persistent food inflation तो है, आप इसको तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हो. रादर इसको सपोर्ट करने के लिए इको सर्वे में डेटा है ही कि भाई क्या आपका या बजट, इको सर्वे में डेटा है कि कितना इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन राइज किया है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर.
एक ट्रेंड दे हैव गिवन, उसको आप यूज कर सकते थे इन द इंट्रोडक्शन. देन आई आस्किंग कमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई. मतलब ये कह रहे हैं कि जब फूड इन्फ्लेशन हो रहा है तो क्या आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी उसमें किस हद तक इफेक्टिव है. नाउ इन इकोनॉमिक्स वी हैव स्टडीड समथिंग कॉल्ड एज द फिस्कल पॉलिसी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी. वी नो दिस इज द डोमेन ऑफ द आरबीआई व्हाइल दिस इज द डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. अब अगर आपने फूड इन्फ्लेशन के बारे में देखा होगा, लिटिल डिड वी सी दैट आरबीआई इंटरवीन्स टू लाइक मैनेज द प्राइसेस ऑफ द फूड, वेयर इज द गवर्नमेंट डज सो. या तो वो स्टॉकिंग कर लेते हैं, या वो पूरा होर्डिंग करेंगे, या तो उसको रिलीज करेंगे. आपने एक्सपोर्ट्स बैन के बारे में सुना होगा, जब व्हीट का एक्सपोर्ट बैन कर दिया था गवर्नमेंट ने. आपने 3F के बारे में सुना होगा, फूड फ्यूल फर्टिलाइजर में जो इन्फ्लेशन देखा गया है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर. तो ये जो टॉपिक था थोड़ा तो प्रेडिक्टेबल लाइंस पे इट वाज, बिकॉज दिस हैज बीन देयर इन द न्यूज़, एंड बजट में स्पेसिफिकली हाईलाइट किया गया था फूड इन्फ्लेशन एंड the price of food because of the climate change. तो इसमें बहुत से एंगल थे. इसमें वॉर का एंगल था, इसमें क्लाइमेट चेंज का एंगल था. इफ यू आर आस्किंग द कॉजेस, बिकॉज देयर वाज द कॉजेस, तो वॉर्स की वजह से भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हो रहा है. तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर इंपैक्टिंग द ग्रोथ. तो आप इसको खाली इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ही नहीं, rather you could have included the IR perspective, you could have included the environmental perspective that causing these kind of food inflation that is leading to. Also there is a dietary shift that is being witnessed. I think आजकल people are switching more towards a protein rich diet and all. थोड़ा सा अभी there is movement of the food towards the what we call the processing industries, जहाँ पे इसको processed food में convert करने की बात हो रही है. Because of that also at times there is a question or debate on availability of the raw grains and that for processing. कितना आपका वेस्ट हो रहा है फूड एंड ऑल, बिकॉज स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो रॉटिंग ऑफ फूड ग्रेन्स जल्दी वो डैमेज हो रहा है. दैट्स व्हाई आल्सो कभी-कभी लीन सीजन में अवेलेबिलिटी कम हो जाती है. ठीक है. सो द कॉजेस तो वी कुड हैव मेंशन. इंट्रोडक्शन यू कुड हैव मेंशन कि कितना फूड इन्फ्लेशन इंडिया में है और किस तरीके से पिछले 1 डिकेड में वो राइज फॉल उसका हुआ है. तो दैट वुड हैव बीन एज एन इंट्रो. डायरेक्ट कॉजेस. अब सेकंड पार्ट था आरबीआई का रोल. सो इन दिस सेकंड पार्ट यू कुड आई मेंशनड इज RBI. Rather government का fiscal policy role comes and then I've given some examples. क्योंकि और ऐसे specific तो इस पे content prepared नहीं था कि ऐसे directly they ask के food inflation के respect में बताओ. So that is how I basically approached this question. Cool. Understood. So this was my idea of like for these two economics based question that you can see. Now next is the question that was there of from I think it is of the agriculture. What are the factors responsible for successful implementation of land reforms in some part of the country? Elaborate. Again, if we talk about land reforms, very highly repeated. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेड टॉपिक है. ये आपके सिलेबस में भी डायरेक्टली मेंशन्ड है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी है. तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि प्रिपेयर होना ही चाहिए. इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनसीईआरटी है दैट इज बीन प्रिस्क्राइब्ड. आई थिंक वो स्टार्ट ही होती है पोस्ट वो 1947 के बाद से, एंड इट टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स, चाहे वो जमींदारी अबॉलिशन हो. नॉट जस्ट इन मींस, इवन इन प्रीलिम्स द रिफॉर्म्स हैव बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी. चाहे वो आपका टेनेंसी हो, चाहे वो लैंड कंसोलिडेशन एक्ट हो, लैंड अबॉलिश जो भी जमींदारी का अबॉलिश पूछ लिया था कि लैंड रिफॉर्म्स जो है इनकी क्या लूप होल क्या रहा इसमें से, ऑब्जेक्टिव क्या था. तो ये एक चीज एक बहुत ही नोन ट्रेंड था कि जो सोशलिस्ट जहां पे गवर्नमेंट्स थी वहां पे ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो गया था. बीट इन साउथ, बेस्ट एग्जांपल इज वेस्टर्न जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं इंडिया में, वहां पे उनका इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा ऑन अ बैक स्टेज रहा है बिकॉज देयर हैज बीन राइज ऑफ समथिंग कॉल्ड एज. अब ये यहाँ पे भी मैंने अपना PSIR का भी थोड़ा नॉलेज यूज किया था बिकॉज वी स्टडी अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स, वी स्टडी अबाउट द राइज ऑफ द OBCs, वी स्टडी अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म स्लो डाउन हो गया. क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन में हम क्या कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट मैकेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, एंड फॉर मैकेनाइजेशन यू नीड टू हैव अ बिग लैंड साइज. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया में इशू ये है कि बहुत ज्यादा लैंड फ्रेगमेंटेशन हो जा रहा है. और जब हम भूदान मूवमेंट की बात करो, जमींदारी अबॉलिशन की बात करो, लैंड सीलिंग लिमिट की बात करो, ऑल ऑफ दैट टॉक्स अबाउट कि भाई go and distribute lands among people. जब ये land size small हो जाएगा, green revolution would not have been a reality. और northern states में बीट पंजाब, बीट हरियाणा, बीट वेस्टर्न यूपी, ये सब एरियाज में आप देखोगे कि there has been better implementation of green revolution, जिसकी वजह से land reforms का जो proper implementation था that took a back. तो यहाँ पे भी ये डायरेक्ट वन ही डायमेंशन में ये क्वेश्चन था. इसके अलावा I don't think they have asked any
parts. तो elaborate करने को बोला है, मतलब they are under the hidden question here is कि आपको पता है कि land reforms completely successful नहीं रहा है, कहीं पर it has went on the positive note, कहीं पे on the negative note. Now elaborate. तो I started with land reforms का proper ये definition भी start हो सकता था, कब implement हुआ है, क्यों implement हुआ है, ये introduction था. Then सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन इन सम स्टेट्स. फिर आता है कि आपको जिसमें कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, कुछ स्टेट्स से दैट वर अवे फ्रॉम ग्रीन रिवोल्यूशन, वहां बेटर हुआ. कुछ स्टेट्स में अब ये पॉलिटिकल विल का भी क्वेश्चन आता है वहां पे, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड हो या रिवोल्यूशन हो. सो ऑल ऑफ दैट वाज देयर. बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन था, इसमें कोई करंट इंट्रो या समथिंग कुड हैव नॉट बीन यूज्ड इन अ वेरी बेटर वे. सो इट वाज अ वेरी सिंपल, आई वुड से, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन. Very repeated thing. Now, if we talk about this, now this has been there in the news since 2023 because there was something called as International Year of Millets. ठीक है, अब इसकी वजह से millets तो न्यूज में हैं ही बहुत टाइम से, और नहीं भी है तो even in agriculture you will always study about climate change, you will study about doubling the farmer income. तो इन दोनों ही केस में मिलेट्स का नाम आता है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज में भी नो देयर इज इशू दैट वी आर फेसिंग विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल, मतलब ग्राउंड वाटर है कि नहीं, देन सैलिनिटी ऑफ लैंड इज देयर, डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड. एंड मिलेट्स का क्या है कि दे कैन बी ग्रोन इवन, दीज आर कोर्स ग्रेन दैट कैन बी ग्रोन इवन इन विद लेसर वाटर. एंड डबलिंग फार्मर इनकम में वही कह रहे हैं कि भाई फार्मर्स की इनकम का एक सबसे बड़ा इशू ये हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द इरेटिक मॉनसून, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, जो ग्रोथ है क्रॉप्स की दैट इज गेटिंग इम्पैक्टेड. एंड इफ दे मूव टुवर्ड्स मिलेट इट इज गोइंग टू बी अ मोर स्टेबल क्रॉप फॉर देम. एंड ये क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से दे आर बेटर सूटेड फॉर दिस, सो दे विल हेल्प फार्मर्स टू गेन अ बेटर इनकम ऑल्सो. तो मिलेट्स इस वजह से न्यूज में रहे थे थ्रू आउट द ईयर. मिलेट्स के लिए आई थिंक देयर इज एन इंस्टीट्यूट, आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम, जो गवर्नमेंट इज ओपनिंग समवेयर इन द साउथ, महर्षि स्कीम और समथिंग. if I'm wrong, please check that. But there is some institute that the government is trying to open, जहाँ पे internationally जितने भी researchers हैं on millets, crops, इसके, they are trying to collaborate somewhere. तो वो एक है, I think Bangalore or in Tamil Nadu somewhere, Chennai somewhere, they are trying to open that institute. So it was there in the news, something as good as this. Here what are they asking? Explain. एक है रोल ऑफ मिलेट्स. अब रोल ऑफ मिलेट्स किसके लिए? एक हो गया हेल्थ, एक हो गया न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. हेल्थ में चलो डायबिटीज के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लाइक वी नो डायबिटीज में एक इशू होता है विद द पेशेंट इज ऑफ शुगर स्पाइक. ठीक है, पोस्ट मील ये देखा गया बिकॉज जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, बीट राइस, बीट व्हीट, उनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है. सो वंस यू कंज्यूम द शुगर स्पाइक इज वेरी हाई. तो ये इशू होता है विद द डायबिटिक पेशेंट्स. अब इसमें क्या होता है, इफ दे आर गिवन मिलेट्स, मिलेट्स आर नोन टू हैव अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. फर्स्ट थिंग. There are some of the millets, for example if I talk about ragi, it is a very good source of calcium. तो इस तरीके से मिनरल स्पेसिफिक जिनको डेफिशिएंसीज होती हैं, दे कैन गो फॉर रागी इज गुड सोर्स ऑफ दिस. सम आई डोंट नो इफ आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम, it is good source of protein. So in these millets have also some good microelements that are present. They also have some good biomolecules, be it proteins, etc. And they're really good as a substitute for people suffering from something called as, some have wheat allergy, some people are not very suited to, they have issues with rice if you're having thyroid or if they're having. Correct. So unke liye ek replacement hai. When we talk about nutritional security, is this angle that I was trying to bring. India में एक hidden hunger का concept है. यहाँ पे nutritional deprivation भी है. People suffer from stunting, the child stunting हो गया. And इन सबका डेटा आपको मिल जाएगा आराम से. To substantiate your argument, you will get it in the budget and in the economic survey. तो you could have given data also कि क्यों nutritional security के लिए required है. दूसरी चीज आप ये भी देख सकते हो, because of the wars that are going on, कुछ ऐसे specific regions हैं that get impacted. तो अगर हम दूसरी कंट्री पे भी डिपेंड कर रहे हैं तो that's also an issue. Because usually अगर देखा जाए तो I think Africa is one of the place where जहाँ पे सबसे ज्यादा millets होते हैं. इंडिया, एशिया में अगर देखा जाए तब फिर इंडिया इज अ गुड लाइक प्रोड्यूसर, बट अदरवाइज अफ्रीका में बहुत. लेकिन अब ये कि हम टोटली उन पे डिपेंड नहीं हो सकते. इंडिया शुड नाउ स्टार्ट मूविंग. अब अगर हम देखें इंडिया के कई पार्ट्स हैं, सौराष्ट्र रीजन है इधर का, या जो इधर साउथ में कुछ रीजन हैं जो बैरन है, या जहाँ पे प्रॉपर राइस या व्हीट नहीं ग्रो हो रहा है. बट देन सी कर्नाटका, इट इज अ वेरी गुड प्रोड्यूसर ऑफ रागी. यू कैन, तो वी कैन स्टार्ट गिविंग एग्जांपल. सब मेनलैंड में यहाँ चले आओ, मध्य प्रदेश हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे भी देयर आर सम इंपॉर्टेंट बाजरा एक्सेट्रा दैट इज ग्रोन. तो आप एग्जांपल दे सकते हो कि भाई न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए भी रिक्वायर्ड है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी रिक्वायर्ड है, हेल्थ के लिए भी. सो ये तीन डायमेंशंस पे यू कुड हैव टॉक्ड विद गिविंग रेलेवेंट एग्जांपल्स एंड दिस वाज लाइक गुड टू गो. इंट्रोडक्शन ही हो सकता था कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2023 as an international year of millet in health as well as nutritional security of the world. Correct. At a larger stage, and then you could have went ahead with India. So this was question number 4. Now let's move to question number 5. Now here we are again now slowly moving towards, I think, for the science and technology part.
Okay, so now also if I talk about IPRs, IPR has been one of the favorite topic of UPSC. आपको prelims में भी मिलेगा. I think there was one question कि कैसे farmer right पे था और क्या चीज पेटेंट कर सकते हैं, क्या लिविंग बींग्स को पेटेंट किया जा सकता है. जेनेटिकली मॉडिफाइड एक क्रॉप्स होते हैं, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ठीक है, तो क्रॉप्स तो चलो ठीक है, वी अज्यूम देम एज दे आर नॉट लिविंग. ठीक है, तो इस वजह से हम इनको तो पेटेंट कर सकते हैं. बट देन देयर सपोज वी हैव अ जेनेटिकली मॉडिफाइड शीप दैट इज बीन प्रोड्यूस्ड, क्या उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप पेटेंट कर सकते हैं या नहीं, तो दैट इज एन इशू. उस पे भी क्वेश्चन यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड. तो आईपीआर इज अ नोन टॉपिक जिस पे आपके नोट्स प्रिपेयर होनी चाहिए. वेरियस टाइप्स ऑफ आईपीआर आपको पता होना चाहिए. इंडिया में भी ऑल्सो इफ यू सी आर&डी की जब भी बात होती है, देयर इज अ क्वेश्चन कि भाई इतने तो पेटेंट्स होते हैं, बट फिर उसमें भी हमारे बहुत सारे इश्यूज होते हैं. रिसर्च पेपर्स जा रहे हैं, पेटेंट्स के लिए रिक्वेस्ट जा रही है, पर वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है. तो ये टॉपिक न्यूज में भी है और ये टॉपिक यूपीएससी के सिलेबस में भी है. सो इट इज समथिंग दैट इज आल्सो दैट वाज ऑन द सेट लाइंस इफ आई कुड से. इन what is the present world scenario of IPR with respect to life material? Achha, it was with respect to that only. Although India is second in the world to file patents, only a few have been commercialized. Explain the reason behind this less commercialization. तो पहले तो इन्होंने ये पूछ ही लिया कि भाई लाइव मटेरियल्स के रिस्पेक्ट में you have to talk about क्या क्या IPRs exist करते हैं. ठीक है, like if you know, if you have heard about something called as copyright or trademarks, these are with respect to non-living. ठीक है, लेकिन IPRs हमारे अगर हो जाए with respect to patents जो लिए जाते हैं, that is with respect to, अब इनमें आपको पूरी तरीके से you could have dissected various dimensions, but वही मैं कह रही हूँ कि जब वो एक डायमेंशन के रिस्पेक्ट में पूछ देते हैं, it becomes very difficult to generate several dimensions, क्योंकि आपके पास नहीं होंगे उतने पॉइंट्स. आपके पास एक एग्जांपल होगा, क्योंकि when we are preparing notes, ये तो एक डायमेंशन होता है ना. अब एक डायमेंशन पे क्वेश्चन होना, that becomes really like difficult. You could have started, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पेटेंट की बात हुई है, तो यू कुड हैव मेंशन्ड, अगर आपके पास कोई डेटा है कि इंडिया कितना पेटेंट फाइल कर रहा है एंड फिर कितना क्या इश्यूज है, तो दैट कुड हैव बीन एन इंट्रो. आई स्टार्टेड विद डेफिनेशन ऑफ आईपीआर. उसके बाद मैंने मेंशन कर दिए कुछ एग्जांपल्स जो मुझे याद आ रहे थे कि भाई जेनेटिक मटेरियल्स को लेकर. I gave certain examples also. उसके बाद ये जो है रीजन बिहाइंड लेस कमर्शियलाइजेशन, ये कॉमन हो जाता है भाई कि भाई इंडिया का जो आर&डी है वो थोड़ा वीक है, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज देखो वो थोड़ा वीक है, लोगों का जो पार्टिसिपेशन है और मूवमेंट टुवर्ड इन द स्टेम फील्ड्स वो बहुत कम है. ठीक है, फिर उसके बाद एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा जो स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, फाइनेंसिंग होनी चाहिए. इंडिपेंडेंट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म नहीं है. देयर इज नो मेथड टू encourage more people to get into this R&D fields. उसके बाद आई हैव मेंशन्ड, इसमें मैंने स्कीम्स ऑफ वे फॉरवर्ड मेंशन कर दिया था, बिकॉज वैसे ही मेरे पास ज्यादा डायमेंशंस थे नहीं, स्पेस वाज देयर. तो वे फॉरवर्ड के थ्रू आई टॉक्ड अबाउट द अनुसंधान, नेशनल अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन, समथिंग दैट द गवर्नमेंट हैज कम अप विद टू प्रमोट R&D, टू प्रमोट IPR एंड प्रमोट पीपल मूविंग टुवर्ड्स दिस. तो थोड़ा सा उस एंगल पे आए. ऐसे क्वेश्चंस में वैसे भी मतलब हमेशा आपके पास थोड़ा कंटेंट पूरा कंटेंट नहीं रहेगा टू गो अहेड विद इट. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज अ टेक्नोलॉजी. हाँ, now this question also I'll tell you, this was just one statement, I can say one line जो बजट में मेंशन थी थोड़ी इस तरीके से, but I've heard from people कि एक प्रॉपर एडिटोरियल था जो द हिंदू ने कवर करा था ऑन इलेक्ट्रॉनिक टोल. हाँ, तो वो ये था. अब यू डोंट नो कितने सारे एडिटोरियल्स आ रहे हैं, उसमें से कौन सा यूपीएससी इज गोइंग टू पिक अप. अब टोल कलेक्शन पे वो पूछते तो वी कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम कैसे पहले फिजिकली होता था, धीरे धीरे चीजें फास्टैग हो गया एंड धीरे धीरे so evolution बताना becomes easy, but they've specifically are they using for electronic toll collection only on the highways. What is its disadvantage? आपको इसका advantage भी बताना था, आपको इसके limitations भी बताने थे. What are the proposed changes that will make this process seamless? मतलब इसमें कुछ अगर limitations है तो कुछ changes को के बारे में बात की है. Would this transition carry any potential hazard? Now ये तीन चार सब पार्ट्स हैं इसमें. Now how I link to it I'll tell you. एक था when we study infrastructure for economy, जिसमें आपने रोडवेज रेलवेज पढ़ा होगा. ठीक है, रोडवेज है, रेलवेज है, आई थिंक एयरवेज, ये तीन चीजें यूपीएससी ने सिलेबस में दी रखी है. यहाँ पे जब हम एनालिसिस करते हैं, वी नो दैट इंडिया में 60% ऑफ कार्गो गोज थ्रू दिस, बट यहाँ पे एक मेजर इशू जो रोड्स पे फेस होता है, दैट इज योर टाइम बहुत ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से कॉस्ट ओवररन भी हो जाता है. तो इस क्यों होता है, बिकॉज व्हेन यू आर स्टैंडिंग एंड टोल पॉइंट्स, आप इतनी देर वेट कर रहे हो, तो कॉस्ट ओवररन, टाइम ओवररन एंड ऑल. तो मैंने यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिससे मुझे लगा कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन विल बी वेरी हेल्पफुल. यू डोंट हैव टू वेट, इट विल बी सीमलेस, ट्रैफिक्स नहीं होंगे, ये नहीं होगा, ये थोड़ा एक इशू
आएगा. When they are talking about ये potential hazard, तो एक डिजी यात्रा का concept जो है, तो there was an issue कि people have complained कि somebody was sitting and clicking yes 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 without even asking do you want your data to be stored. हाँ, तो ये मुझे लगा कि अच्छा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कर दे रहे हो तो वहां पे यूजर का कंसेंट है, उसकी परमिशन डिजिटली जा रही है, और एक बार आपने दिया है तो वो बार बार आपसे कंसेंट नहीं लेगा. सो देयर आर इशू विद दोस थिंग्स. तो ये आंसर मैंने इस तरीके से थोड़ा अलग अलग जगह से इम्पैक्ट को लिंक करते हुए, बिकॉज इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज गोइंग टू बी डिजिटल, it is a technology that will take your data, it is a technology that is electronic. ठीक है, और इसका किस लिए किया गया है, ये कुछ रीजन है, टाइम ओवररन, कॉस्ट ओवररन, ट्रैफिक हो गया, इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ही दीस थिंग्स आर बीन डन. फास्टैग क्यों लाया गया था, इज आल्सो उसके हमने मेरिट्स पढ़े थे, वो जो मुझे याद था. सो आई ट्राइड रेप्लिकेटिंग दैट हियर इन ऑर्डर टू शो. थोड़ा इवोल्यूशन के फॉर्म में दिखाई दिया मैंने कि पहले वी हैड दैट फिजिकल टोल कलेक्शन, देन वी वेंट टू फास्टैग एंड देन वी वेंट टू इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, सो दैट वी शो कि किस तरीके से वी हैव आल्सो इवॉल्व्ड इन दिस. एडवांटेजेस वही पॉजिटिव कि भाई कॉस्ट ओवर एंड टाइम ओवर बचेगा, लिमिटेशंस वही कि डेटा प्राइवेसी का इशू आ जाएगा. एंड उसके वजह से क्या है भाई, गवर्नमेंट विल टॉक अबाउट द कंसेंट मैनेजमेंट हो गया, या यू हैव द राइट टू यू नो गिव परमिशन एंड ऑल, थोड़ी वो चीजें प्रपोज की गई थी, या परमिशन शुड बी टेकन बिफोर गिविंग यू नो गो अहेड फॉर एनीथिंग. दिस पोटेंशियल वही बात है कि प्रिवेसी वाला ही, और थोड़ा ये भी है कि बहुत ज्यादा जब डेटा फीड होता है तो उसको हैंडल करना, डेटा स्टोर करना, और डेटा का जो लीकेज है वो ना हो, वो सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दीज डेज साइबर अटैक इज ऑल्सो एन इशू, जिसकी वजह से इफ दे गेट द डेटा things are going to be on issues. तो ये उस तरीके से I brought in dimensions from various. एग्जामिनेशन में ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो ये आइडेंटिफाई करो कि टेक्नोलॉजी है वो क्या है, एंड उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आजकल क्या डिबेट्स चल रही हैं. देन यू विल बी एबल टू, जैसे इसमें सिंपल है ना, इलेक्ट्रॉनिक मतलब वही जो डिजिटल है ना, डिजिटल टेक्नोलॉजी की ही बात है, ओवरऑल कुछ नहीं है. तो उसके क्या एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, हैजार्ड्स हो सकते हैं, उस डायरेक्शन में सोचना शुरू करना. अभी तो खैर चलो ठीक है, यहाँ पे तो स्टिल वी नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, बट मान लो नहीं आए, जैसे मान लो वो चंद्रयान और उसका जो स्पेसिफिक पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर ट्यूब के बारे में बता दो, तो वहां पे आप यही लिंक कर सकते हो. क्योंकि हाँ, बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रिपेयर्ड कंटेंट ऑन दैट, तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू गो अहेड. Question number 7 is industrial pollution of a river. Water is a significant environmental issue in India. Discuss the various mitigation measures to deal. Okay, so this was a question actually on river pollution ही एक तरीके से अगर आप देख लो, ठीक है, और ये industrial effluent की बात कर रहे हैं कि भाई क्या क्या issues है. This was also in news because they were talking. अब देखो ये मुझे क्यों लगा न्यूज में था, because वही अभी you know there have been issue in. अब मैंने अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो प्रयागराज में जब कुंभ होने वाला था तो देयर वर डिबेट्स, क्योंकि बाहर से भी लोग आने वाले हैं, सो यू शुड हैव अ क्लीन यू नो, एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट का ये जो नमामि गंगे इनिशिएटिव था, इस पे द सीएम ऑफ यूपी वाज जस्ट टॉकिंग अ लॉट अबाउट इट. तो ये एक इशू था. दूसरा दे वर टॉकिंग अबाउट बायो रीमेडिएशन, कि इन केस अगर बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है तो कहाँ पे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज कर सकते हो टू ट्रीट द पोल्यूशन. तो बिकॉज ऑफ दैट, और वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ऑयल पोल्यूशन, एक बार उन्होंने ऑयल स्पिल पे क्वेश्चन पूछ लिया है. तो एवरी ईयर वन एनवायरमेंट का क्वेश्चन इज ऑन a pollution that is there. It can ask related to ozone etc. तो ये तो आपके सिलेबस में ही मेंशन्ड है, every kinds of pollution, तो that has to be prepared. बहुत ही बेसिक है. अगर आप बात करना चाहो तो आप किसी गवर्नमेंट स्कीम से, नेशनल आई थिंक रिवर कंजर्वेशन प्लान एक है गवर्नमेंट का, जो 1900s में आई थिंक इट स्टार्टेड, 1990s में इट स्टार्टेड, एंड यू कैन गो. इसी का पार्ट है हमारा नमामि गंगे इनिशिएटिव, जो गंगा का क्लीनिंग प्रोग्राम है. अभी गवर्नमेंट, दिल्ली के गवर्नमेंट की बात करो, दे आर टॉकिंग अबाउट द यमुना रिवर क्लीनिंग आल्सो. उसको भी लेके बहुत सारे वो हुए थे, लास्ट ईयर डिबेट्स चल रहे थे बिकॉज ऑफ दैट फ्रॉथ एंड ऑल दैट इज देयर. तो रिवर पोल्यूशन तो ये है ही यहाँ पे. और दिल्ली जैसे एरिया में, या फिर आप कानपुर की बात करो, या गोमती रिवर इन लखनऊ, तो 3-4 ऐसे रिवर्स हैं दैट आर नोन टू हैव लॉस्ट इट्स बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल फ्लो बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पर से. हाँ, तो वो कुछ एग्जांपल्स थे मेरे पास, आई न्यू दैट. तो यहाँ पे भी बेसिक एग्जांपल्स ही शुरू करा कि भाई नेशनल, ये इससे मैंने स्टार्ट किया था नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान से. आई गेव एन एग्जांपल किसके अंदर गवर्नमेंट इज टारगेटिंग दोज रिवर्स दैट हैव बीन पॉल्यूटेड. अब रिवर पोल्यूशन में क्या आ जाता है कि दे हैव आस्क्ड यू सेवरल डायमेंशन. एक तो स्टेटमेंट दे दिया है, दूसरा बोला है यू हैव टू डिस्कस द मिटिगेशन मेजर्स टू डील एंड आल्सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव. मतलब उन्होंने कहा है कि भाई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इशू है, आप मेरे को मेजर्स बताओ कैसे ठीक होगा, और आप बताओ गवर्नमेंट क्या कर रही है. तो एक तो आपने बता, ये गवर्नमेंट की स्कीम हो गई, नमामि गंगे इनिशिएटिव हो गया, इन्होंने जितने भी रिवर क्लीनिंग के इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की भी बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट थोड़ा. तो बेसिकली कुछ डायमेंशंस कुड हैव बीन गिवन हियर. वेरियस मिटिगेशन मेजर्स में यू टॉक अबाउट बायो
remediation, you talk about वो क्या हम बोलते हैं sewage treatment plants that should be there before your waste has been, उसके लिए आप थोड़ा penalize करने की कोशिश करो. There should be some rules and regulation that industry is doing so and so. फिर polluters pay principle आप यहाँ पे लगाओ. So all of those measures could be brought here जो आपने कहीं भी पढ़े हुए हैं environmental aspect से. BOD की बात होती है, biological oxygen demand. There is something called as dissolved oxygen. There is something called as chemical oxygen demand. ये सब कुछ आप environment में पढ़ते हो. Use this here because this is specifically with respect to pollution in the rivers. So when you're using this thing, it looks much, I can say, मतलब vocabulary जो होती है सब्जेक्ट की, that should be adhered to. बाकी गवर्नमेंट स्कीम्स अगर आपको पता होंगी कि भाई रिवर्स के लिए क्या क्या था, बिकॉज मुझे NCRP वही नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान पता था और नमामि गंगे इनिशिएटिव पता था. सो आई जस्ट वेंट विद दीज टू. इसके जो वर्टिकल्स हैं, अविरल धारा, निर्मल धारा, मतलब अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो, ठीक. तो ये सारी चीजें जो थी इन्हीं को मैंने मतलब वेरियस डायमेंशंस करके एंड आई हैव मेंशन सो दैट इट लुक्स थोड़ा मतलब आपके पास पॉइंट जनरेट करने के लिए ज्यादा हो. व्हेन यू आर एंडिंग इट कुड हैव एंडेड विद सम ऑफ द SDGs जो क्लाइमेट चेंज है उसकी बात कर रहे हैं. यू कुड हैव एंडेड विद एन SDG दैट वुड आल्सो सूट हियर आल्सो, और थोड़ा एक आपका वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव विल आल्सो बी सीन हियर. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7. Okay, so here, okay, all right, this is a question on what is the role that is played by environmental NGOs. Now you need to have name of some of them definitely, otherwise again this answer is a very vague answer. They are saying they play in influencing the environment impact. देखो EIA तो हमने पढ़ा हुआ है. Everybody, we study it for pre, we study it for means, we study what is EIA, we study what are the steps in EIA. ठीक है, वी स्टडी इसका भाई पॉजिटिव क्या है, वी नो इसका नेगेटिव क्या है. तो एनालिसिस करना तो ठीक है, EIA का बहुत ज्यादा इजी था, बट दे आर नॉट आस्क्ड इट. दे आर आस्किंग व्हाट इज द रोल ऑफ एनवायरमेंटल एनजीओज इन इन्फ्लुएंसिंग दीस थिंग्स, कि भाई EIA को ये कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. अब ये इश्यूज आ जाते हैं, कोई ना कोई अगर न्यूज में रहा हो जहां पे किसी प्रोजेक्ट को डिले करने की बात की जा रही है, दैट कुड हैव बीन देयर, यू कुड हैव स्टार्टेड. क्योंकि मेरे आई डिडंट हैड एनीथिंग इन माइंड, आई स्टार्टेड विद व्हाट इज EIA. तो आप इसके डेफिनेशन से आई स्टार्टेड इट. एंड रोल में तो आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई एजुकेटिंग एंड मेकिंग पीपल अवेयर, तो ये जो बेसिक चीजें हैं सिंपल वही जेनेरिक, दैट आई वेंट एंड देन. लेकिन अब ये नहीं है मेरे पास साइट 4 एग्जांपल विद ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल्स. अब अगर वो नहीं है तो योर आंसर इज एनीवे 5 मार्क्स ही आप लिख के आ रहे हो, अदर 5 मार्क्स यू नॉट देयर. मेरे पास देयर वाज नथिंग इन माय माइंड. कुछ एनवायरमेंटल मूवमेंट्स वर देयर इन माय माइंड, लाइक वी हैव दोस चिपको मूवमेंट या आपका जो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया. तो ये लोगों के अब वी हैव सम ऑफ देम इन माइंड, बट वी डोंट हैव एनजीओस का नेम दैट आर स्पेसिफिकली वर्किंग फॉर दैट. So that's why this answer went on a very vague lines, to be very honest. I wrote the role, but I couldn't give good example for that. So that was one issue in this. That बहुत ही ज़्यादा specific नहीं हो गया कि EIA भी मतलब किसी प्रोजेक्ट का EIA चल रहा था, उसके आउटकम को इन्फ्लुएंस करने में किन 4 NGOs और एक्टिविस्ट्स ने रोल प्ले किया. And with all important details, you cannot just mention the name. You have to give the details कि भाई वो किस केस में इन्वॉल्व थे, क्या उसका भाई इशू था एंड एवरीथिंग. तो that's why I think कि थोड़ा सा GS पेपर 3 goes on a line कि आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते हो कि what are. So ये थोड़ा आंसर literally went vague, nothing to add on in that. Alright, then these are the 2 questions जो आपको 9th 10th मिलेंगे. They'll be from your internal security only. First question is explain how narco terrorism has emerged as a serious threat across the country, ठीक है, and then suggest suitable measures to counter this narco terrorism. अब ये भी है कि internal security में if you go through the syllabus, you go through the previous year question, drugs, narcotics पे हमेशा questions रहते हैं. Even in IR, you might have come across something called as the golden triangle or the golden crescent. तो ये दोनों questions हैं भाई. India lies somewhere in between the 2 arcs of instability, what we call. Here we have the golden crescent, we have the golden triangle, जिसकी वजह से drugs का issue है. But ये drugs जो है ये किस तरीके से, narcotics is how further linked to organized crime and how it is linked to terrorism, because these terrorism needs funding. You have to understand, and funding come from these organized crime, and one way of that is drugs, one way of that is smuggling, one way of that is trafficking, etc. तो ये भी बहुत ही basic syllabus based था. अगर आपका notes इस पे prepared था कि how it has emerged as a serious threat, you could have given some recent examples. भाई drugs का इधर पंजाब and राजस्थान हरियाणा वाले region में तो impact properly it has been talked about, detailed about. अभी जो मणिपुर में also we saw that there was that the instability that was created because of the 2 communities that have been, उसमें भी था कि there have been suppression, of government has done a crackdown on these narcotics का ग्रोथ जो यहाँ चल रहा था, बट दैट इज बीन स्मगल्ड फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज बिकॉज यहाँ का बॉर्डर एरिया बहुत स्ट्रांग नहीं है. तो
ये है, यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ। तो इसमें आप कोई डेटा कोड्स कर सकते थे। आई थिंक यूनाइटेड नेशन का ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम है जो डेटा निकालता है कि भाई कितना ड्रग्स का क्या इम्पैक्ट है, किस तरह कितने इश्यूज हैं, कितना आपका स्मगलिंग एंड ऑल हो रहा है। दैट इज देयर, यू हैव अ डेटा, यू कुड हैव स्टार्टेड विद दैट दिस आंसर। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ इट हैज इमर्ज्ड, तो यू गिव एन एग्जांपल्स कि भाई किस तरीके से इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, जो ये गोल्डन ट्रायंगल्स का क्या इम्पैक्ट है। देन यू कैन क्रिएट अ डायग्राम शोइंग द लिंकेज ऑफ नार्कोटिक्स with terrorism, with organized crime, and how the funds that is generated, black money and all of that, which is creating an issue. When they're talking about suggest suitable measures to counter this, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अब आपको डायरेक्ट इनिशिएटिव्स ही लिखने हैं कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है इन ऑर्डर टू बी इट फेंसिंग ऑफ द बॉर्डर, स्मार्ट बॉर्डर्स की बात हो रही है, काउंटर जो हमारे यहाँ पे चेक पोस्ट हैं उन पे जो चेकिंग्स हो रही है, स्मार्ट कैमराज एंड ऑल, तो दैट ऑल थिंग्स यू हैव टू डायरेक्टली मेंशन। कुछ है, आई थिंक देयर इज सम प्लेटफॉर्म आल्सो, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, just on lines of the we have something for the policing also for the NatGrid है जैसा वैसा कुछ टाइप का है। they are trying to create a platform so that कोई जितने भी चेक पोस्ट हैं इंडिया में, जितने भी एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, they have a linkage somewhere also, if some amount of is been found, traces have been found, so they, I think they create a central database. Central border mechanism, CRPM. I'm not able to recall that. तो but ये जब such suitable measures वे पूछ रहे हैं आपसे to counter, तो आप खुद के भी बता सकते हो कुछ steps जो गवर्नमेंट ने लिए वो तो आप लिख ही दो अगर आपको रिकॉल हो रहा है। कोई अगर वेबसाइट है, कोई अगर पोर्टल है, कोई अगर गवर्नमेंट की स्कीम है, ये साथ में यू नीड टू हैव कि क्योंकि नार्को टेररिज्म इज समथिंग दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर सर्विलांस। तो भाई बॉर्डर मैनेजमेंट हो गया, एजुकेटिंग द मासेस हो गया, ऑल ऑफ दैट टेक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इफ यू वांट टू हाईलाइट दैट। तो ये बेसिक क्वेश्चन था दैट कुड हैव बीन आंसर्ड बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, ओके, दिस इज द क्वेश्चन जो हम प्रिपेयर करके जाते हैं, या तो गवर्नेंस में आएगा या तो पॉलिटी में आएगा, बट दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड हियर, डिस्क्राइब द कंटेक्स्ट एंड सेलिएंट फीचर ऑफ डीपीडीपी एक्ट। अब ये डीपीडीपी एक्ट की स्पेसिफिक्स अगर आपको नहीं पता है तो यू वुड नॉट बी एबल टू राइट इट। ये एक्ट लास्ट ईयर ओनली इट वाज भाई फाइनली इट वाज फाइनली पास्ड, तो आप इसको इंट्रोडक्शन ही कर सकते थे, स्टार्ट ही कर सकते थे, बिकॉज इंडिया का डिबेट रहा है विद मोस्टली द फॉरेन कंट्रीज हो या फिर जो फर्म्स हैं फॉर डेटा। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे डेटा लोकलाइजेशन हो गया, टर्म्स लाइक डेटा फ्यूडिशरी हो गया, तो दी विदाउट दीज टर्म्स इफ यू आर नॉट मेंशनिंग दैट द आंसर विल बी ऑलवेज इनकम्प्लीट। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक्स ऑफ द एक्ट है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब अभी तो नहीं रिकॉल हो रहा है बट आई हैड मेमोराइज्ड इट वेरी नाइसली, क्योंकि हाँ क्योंकि प्रीलिम्स के लिए भी किया था और दे आस्क्ड टर्म्स लाइक आई थिंक डेटा फ्यूडिशरीज क्या है, फिर आपका देयर समथिंग कॉल्ड एज टाइम लिमिटेशन, देयर समथिंग कॉल्ड एज सब 3 लिमिटेशंस के बारे में बात की गई है, 3 एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है। हाँ, तो वो चीजें बहुत स्पेसिफिक उस एक्ट की हैड टू बी मेंशन्ड हियर। इट वाज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। अब देयर इज ऑल्सो डिबेट कि क्या हम अब सारे एक्ट्स पढ़ लें, डू वी नीड टू रीड ऑल ऑफ द एक्ट्स? नो, कुछ एक्ट्स होते हैं दैट अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ मीडिया अटेंशन, जैसे सीईसी का एक्ट था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था। अब अगर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई एक्ट आ रहा है, या फिर अभी डिजिटल मीडिया, अब आर्टिकल 21 के अंदर प्रिवेसी और डिजिटल जो इनिशिएटिव्स हैं उसको टारगेट किया ही गया है। तो दिस वाज देयर इन न्यूज़ फॉर क्वाइट सम टाइम बिकॉज इंडिया टॉक्स अबाउट डेटा लोकलाइजेशन। वो नहीं चाहती कि बाहर डेटा हमारा स्टोर हो या ट्रांसफर हो, तो इसको लेके देयर वाज इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू सम कंट्री कंपनीज लाइक इवन मेटा दैट इज देयर, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड ऑल, उस पे भी कुछ डिबेट्स थे। वी वर नॉट कंप्लाइंग, दे वर कंप्लाइंग विद आवर रूल्स एंड ऑल। तो ये इशू बहुत टाइम से न्यूज़ में था। तो कुछ ऐसे स्कीम्स जो कुछ ऐसे एक्ट्स दैट हैव बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स दैट हैव बीन देयर इन द न्यूज़, फेमस वाले मेरे को लगता है कर लेनी चाहिए। हाँ, वो मुझे कह रहे हैं, और जो ऐसे हैं जो काफी टाइम से न्यूज़ में था और ऑब्जेक्ट, जैसे अभी अगर यू सी, जैसे हमने जीएस पेपर 2 में देखा था वन नेशन वन इलेक्शन। अब वो लास्ट ईयर वन नेशन वन इलेक्शन को साइमल्टेनियस इलेक्शन की तरह पूछा था बिकॉज इट वाज अ न्यूज़ एंड अगेन दे आस्क्ड इट एज वन नेशन विदाउट इवन थिंकिंग कि लास्ट ईयर ही पूछा है। तो एक चीज ये होनी चाहिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग कि कोई चीज जो काफी टाइम से न्यूज़ में चल रही है, अगर उस पर कोई एक्ट या उस पर कोई मतलब डिबेट है तो प्लीज कवर दैट, इट माइट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। So again, coming back to question number 11, it's that of economics only. As I mentioned, that these are the 2 questions that, because I always start from question number 11 and I go to question number 20. This was 11th. I left it. I moved again. This is question number 12. I was like, ठीक है, कुछ तो लिखना है, तो let's get started. अब यहाँ पे क्या था? They are asking discuss the merits and demerits of 4 labor code in context of labor market reform in India. What has been the progress so far? अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहते तो कुछ बेसिक जेनरिक चीजें लिख सकते हैं। अब I'll tell you, I had created a mnemonic ऐसे करके, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी, कोड ऑन सेफ्टी। तो ये मेरे को पता था कि 4 कोड्स के नाम क्या है। अब अगर आप वेजेस की बात कर रहे हो तो मैंने सोच लिया कि भाई मिनिमम वर्किंग आवर्स वाली बात कर लो, विमेन और मेन को सेम आपने देनी है सैलरी एंड ऑल। तो इसके बेसिस पे
आई कुड मेंशन कि भाई क्या क्या मेरिट्स हैं इन 4 लेबर लॉज के, और डीमेरिट्स में आई टॉक्ड अबाउट द गिग वर्कर्स, जिसको लेके प्लेटफॉर्म वर्कर्स या गिग वर्कर्स हम कहते हैं, जिनको लेके काफी टाइम से डिबेट इज देयर, एंड देयर पूरा डेटा वाज कवर्ड इन इको सर्वे, टॉकिंग अबाउट कितने गिग वर्कर्स हैं, टॉकिंग अबाउट फॉर्मलाइजेशन ऑफ द गिग प्लेटफॉर्म, टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ दीज वर्कर्स. तो ये चीजें थी वहां पे कई जगहों पे. हियर लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑक्यूपेशनल सिक्योरिटी और वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, तो थिंग्स लाइक पीरियड लीव्स, अब पीरियड लीव्स दे आर गिवन इन कॉर्पोरेट्स, बट दे टॉक अबाउट द वुमेन वर्किंग इन फील्ड्स ना, जो इसका एक केस स्टडी था ऑफ महाराष्ट्र, if I can clearly recall, it was on sugarcane fields. अब ये क्या होता है, सीजनल होता है, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट women were going for hysterectomies, removing their uterus. Why? Because अगर वो 1 or 2 days भी फील्ड पे नहीं है तो they have been removed or they have been replaced, and since they are all platform workers, they are all informal workers, तो यहाँ पे तो कोई इनको लीव्स नहीं दे रहे हैं ना. तो आप बताओ कि जो कोड्स बन रहे हैं ये भी फॉर्मल सेक्टर को ही एड्रेस कर पा रहे हैं, इनफॉर्मल में आज भी इश्यूज हो रहे हैं. तो ये कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स तो इसके थ्रू आई कुड हाईलाइट. व्हाट हैव बीन द प्रोग्रेस सो फार में, यू नीड टू हैव डेटा टू सब्सटैंशिएट योर आर्गुमेंट, जो मेरे पास नहीं था. सो आई न्यू कि अगर आपको देखना है तो आप बता सकते थे, थोड़ा हाईलाइट कर सकते थे, जैसे कॉर्पोरेट्स में भी ये पीरियड लीव्स का कंसेप्ट आ गया, इक्वल वेजेस की बात होती है, विमेन आर आल्सो बीइंग गिवन एग्जीक्यूटिव पोजीशन. तो ये बहुत ही जेनेरिक ही मैंने लिखा था, अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं आ रहा था मेरे पास, कोई स्पेसिफिक ऐसा डेटा नहीं था, पॉइंट नहीं था, बट ये मैंने ढंग से डिस्कस कर लिया था फ्रॉम ऑल द एंगल दैट आई कुड हैव कवर्ड, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट दीज 4. तो इसी पे मैंने डायमेंशंस जनरेट करके आना. मुझे लगता है कि जब ऐसे किसी क्वेश्चन में फंस जाओ तो ये सोचो कि आप पॉइंट्स कैसे जनरेट कर सकते हो. जैसे मान लो ये है, व्हाट हैज बीन द प्रोसेस सो फार इन दिस रिगार्ड में, दिस क्या है, ये लेबर कोड की बात कर रहा है कि लेबर कोड के रिगार्ड में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है. अब सिर्फ इस प्रोग्रेस को अगर आपको ब्रेक डाउन करना है, तो ब्रेक डाउन थ्रू स्टेक होल्डर अप्रोच, कि भाई गवर्नमेंट ने इस पे क्या प्रोग्रेस किया होगा, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, जितने भी आपके जो एम्प्लॉयर्स है वो क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं. तो ऐसे करके अगर आपको थोड़ा, फिर जैसे हम ESIC की बात करते हैं, EPFO की बात करते हैं, जितना भी आप सोच सकते हो ना, जो भी सिक्योरिटी वाली कंपनीज है वो क्या कर रही हैं, तो अगर आप उसको थोड़ा सा स्टेक होल्डर वाइज तोड़ लोगे तो शायद आप इस आंसर को थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़े पॉइंट जनरेट कर पाओगे. नहीं तो स्पेसिफिक पता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है. So that's why this question went a bit on that note कि थोड़ा आपके पास स्पेसिफिक्स होने चाहिए, otherwise the answer was anyway not very like. पहला ही क्वेश्चन. फिर सेकंड, व्हाट इज द नीड फॉर एक्सपैंडिंग. अब देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वही इंफ्रास्ट्रक्चर एज आई मेंशन, तो उसमें हम रोड पढ़ते हैं, रेल्स पढ़ते हैं, और मोस्टली रोडवेज या रेलवेज ही ऑल्टरनेट करके आ रहे थे बहुत साल से. तो एयरवेज हैव नॉट बीन इनटू द क्वेश्चन इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो इसको हम वैसे ही नेग्लेक्ट करते हैं. बट एनीवे आई हैड डेटा कि कितना परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज बीन, कितना परसेंटेज ऑफ कार्गो इसके थ्रू जाता है, कितना पैसेंजर्स का फीट होता है ऑफ ऑल ऑफ दिस. तो एक डेटा तो मेरे पास इसका इतना रिमेंबर्ड था. दैट बट द क्वेश्चन हियर सेज व्हाट इज द नीड फॉर एक्सपैंडिंग the regional air connectivity in India. In this context you have to discuss the scheme and you have to discuss its achievement. Scheme की specifics होती हैं कुछ, अगर वो आपके पास नहीं है तो आप you will not be able to write anything, otherwise you just वही generic बता रहे हैं कि regional connectivity बढ़ाना चाह रहे हैं, trying to lower the cost of airways, or they are trying to promote people through this, promote more and more people to go or travel through these like air flights, और tourism boost करेगा उस एरिया का. तो ये चीजें थोड़ी बहुत हम बता सकते थे, but why again this was a very like specific question. When they asked what is the need for expanding, तो I can tell. अब ये था, I started with an intro on airways कि भाई कितना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, क्या है, कैसे है, and then what need for regional air connectivity, तो वही आपका जो डेवलपमेंटल डेफिसिट है, रीजनल डिस्पैरिटी एग्जिस्ट कर रही है, टूरिज्म कुछ एरिया का कंप्लीटली अनटच्ड है जिसको आप मोनेटाइज कर सकते हो अगर आपके पास कनेक्टिविटी है उस रीजन में, ठीक है. दैट्स लीड तो ये थोड़ा वहां के आप यू कैन आल्सो दिस विल लीड टू बूस्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द रीजन एज वेल. तो ये सब एग्जांपल्स तो मैंने बता दिया कि इस क्यों चाहिए वो मुझे पता है. इन दिस कंटेक्स्ट आई मेंशन द उड़ान स्कीम, ठीक है, आई थिंक उस उड़े देश का आम नागरिक समथिंग. तो यहाँ पे टारगेट वाज टू मेक द फ्लाइट कॉस्ट चीपर आल्सो एंड अफोर्डेबल आल्सो एंड आल्सो. तो ये चीजें थोड़ी बहुत 2-3 चीजें मैंने बताई. अचीवमेंट्स मुझे नहीं बताते कि भाई उस स्कीम की वजह से कहा. अब देखो इसके लिए यू नीड टू हैव एग्जांपल कि किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे ऐसी कनेक्टिविटी डेवलप करके उन्होंने टूरिज्म बूस्ट किया हो, वहाँ का इकोनॉमी बूस्ट किया हो. तो दैट आई डिडंट हैड, आई ओनली हैड आइडिया अबाउट उत्तर प्रदेश, जिसमें बिकॉज इंटरव्यू में मैंने प्रिपेयर किया था कि 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैव बीन डेवलप्ड एंड ऑल, बट वो रीजनल कनेक्टिविटी में नहीं आते हैं एनीवे. बट आई गिव एन एग्जांपल कि एयरपोर्ट्स होने की वजह से ये कनेक्टिविटी जो है वो तो इंक्रीज हुई है टू सम एक्सटेंट. तो आई आल्सो गिव एग्जांपल कि कैसे नॉर्थ ईस्ट
एक्सपैंड द एयर कनेक्टिविटी, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का एंगल दिया, थोड़ा जम्मू कश्मीर का जो एग्जांपल है उसका दिया, क्योंकि पहले आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370 भी द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रमोट द कनेक्टिविटी एंड वन ऑफ द फोकस एरिया इज टू हैव एन इंटरनेशनल सेट एयरपोर्ट देयर. तो ये सारी चीजें थोड़े थोड़े लाइक वेग एग्जांपल्स बट अ वे टू लाइक अप्रोच इट सो दैट यू एटलीस्ट राइट समथिंग इंस्टेड ऑफ लीविंग इट कंप्लीटली ब्लैंक. इस बार हाई चांसेस है कि वाटरवेज या पोर्ट्स पे क्वेश्चन आ सकता है, हेवीली इन न्यूज़ एंड नॉट आस्क्ड, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा. हाँ, that could also be one way. Okay, now this is what are the major challenges faced by India in irrigation system and state the measures taken by government. Now this is a very generic and a very good question, I would say, क्योंकि भाई ये direct syllabus से आया है आपके, because when we talk about agriculture तो सब कुछ आपका from land to irrigation to seeds to soil to farmers, everything is there in that has been covered. अब एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियाज इरिगेशन सिस्टम इन द रीसेंट टाइम्स एंड यू नीड टू मेजर द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन फॉर एफिशिएंट इरिगेशन मैनेजमेंट. अभी देयर इश्यूज, देयर लाइक द गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग इन ड्रिप इरिगेशन या जो भी वाटर एफिशिएंसी. अब 2023 में क्वेश्चन भी था कि भाई कितना हम अंडरग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या वो सारा, एंड दे सेड कि वो 25% ये जितना भी है हम एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं समथिंग, एंड दैट वाज, और यह ह्यूमन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं बट वो एग्रीकल्चर में जा रहा है. अब ये कुछ इश्यूज जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड, वाटर रिलेटेड, इरिगेशन रिलेटेड न्यूज में रहते हैं. आई स्टार्टेड इट विद द डेटा ऑफ नीति आयोग का, आई थिंक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, तो टॉक्स अबाउट द ग्राउंड वाटर लेवल, कैसे वो पहले इट वाज आई थिंक 1600 मीटर क्यूब समथिंग, इससे अब 1100 पे आ गया है एंड 1700 पे और 1500 पे आ गया है. नाउ इट इज सपोज टू रीच 1100 व्हिच इज कॉल्ड एज वाटर स्कार्स. तो वो एक फैल्कन मार्क इंडेक्स है और समथिंग, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, तो वो उसके थ्रू आई जस्ट हाईलाइटेड कि ये डेटा है. कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स बताता है कि भाई इंडिया का ग्राउंड वाटर लेवल कम हो रहा है एंड इंडिया बीइंग एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी डेवलप इन ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस. अब चैलेंजेस की बात करें तो वही हो गया भाई, आपका ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो डिक्लाइन हो रहा है. उसके बाद जब आप हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो ग्राउंड वाटर पॉल्यूट भी बहुत ज्यादा हो गया था, आर्सेनिक, यूरेनियम का कंटेंट वाज इंक्रीजिंग. दिस आल्सो इशू कि हमारे पास ट्यूबवेल और कनाल बेस्ड इरिगेशन थे, उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर का फ्लडिंग हम करते हैं एक साथ. दिस लीड्स टू व्हाट, दिस विल बेसिकली लीड टू सैलिनिटी, this leads to water logging and this leads to salinity and the water logging and anaerobic conditions in soil. तो ये सारी इश्यूज हैं जो कि इन प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम की वजह से होते हैं. फिर मैंने ये भी मेंशन किया कि भाई इंडिया में मोस्टली तो मॉनसून पे ही डिपेंडेंट है. एरेटिक मॉनसून की वजह से नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड अ प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम. ये कुछ चीजें थी जो मैंने हाईलाइट कर दी फ्रॉम every dimension that I could remember, from farmers perspective, from environmental perspective, that was there. इसके बाद suggest the measures that has been taken. अब जो government में जितने भी, जैसे इन लोगों को I think irrigation के लिए free electricity has been there, that electricity is not accounted into. Government is also talking about sprinklers, government is talking about drip irrigation, government is talking about vertical farming. ठीक है, तो वो सारे जितने initiatives हैं for efficient irrigation management that I've talked about. ठीक है, कुछ basic अगर आपको, हमने उसमें भी पढ़ा हुआ है geography, कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं लाइक बैम्बू ड्रिप इरिगेशन हो मेघालय का, या फिर कोई भी आप देखना कोई ऐसे मेथड्स आपको याद आ रहे हो तो यू कुड आल्सो कोट सम ऑफ देम. तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव भी है, कुछ आप बता सकते थे कुछ ट्रेडिशनल इनिशिएटिव्स दैट हैव बीन वेरी इफेक्टिव. तो दिस वाज एन क्वेश्चन जिस पे कंटेंट भी था. और आई थिंक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज आल्सो देयर, इट इज फॉर द इरिगेशन पर्पस, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर खेत को पानी. तो दो तीन उसके सब वो है ना सब वर्टिकल्स. तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम भी आप मेंशन कर सकते थे इन द मेजर्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन. यू कुड हैव मेंशन्ड अबाउट द इनिशिएटिव्स लाइक फॉर एग्जांपल ड्रिप इरिगेट, स्प्रिंकलर्स वगैरह जो गवर्नमेंट बात कर रही है देने के लिए एट अ सब्सिडाइज्ड रेट. उसके अलावा कुछ ट्रेडिशनल लुक थोड़ा बैलेंस्ड एंड मोर. तो ये था आंसर नंबर 13. Okay, again, if we talk about elucidate the importance of buffer stock for stabilizing agriculture prices. अभी फूड इन्फ्लेशन में तो we talked about this only ना, कि भाई गवर्नमेंट, इट इज फिस्कल पॉलिसी का एस्पेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट या तो होल्ड कर लेती है या तो बफर स्टॉक से रिलीज कर देती है. तो थोड़ा बहुत ये उस लाइंस पे इधर भी है. तो बिकॉज आई रोट दिस फर्स्ट एंड आई वेंट देन राइटिंग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, तो ये मेरे पास एक ऑलरेडी पर्सपेक्टिव था टू गो अहेड विद इट. तो elucidate the importance of buffer stock for stabilizing agriculture prices in India. What are the challenges that are associated with storage of buffer stock? A buffer stock is a wholesale topic in the बफर स्टॉक हो, पीडीएस आपके सिलेबस में लिखा हुआ है साफ साफ. हाँ, इट इज अ डेफिनेट कीवर्ड जिस पे यू नीड टू प्रिपेयर. अब बफर स्टॉक पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं बिकॉज व्हाई देयर इज एन इशू, वही डब्ल्यूटीओ में जो हमारा डिबेट चल रहा होता है दैट दे कॉल्ड इज अ होर्डिंग, जिसको गवर्नमेंट यूज कर सकती है टू डिस्टेबलाइज द प्राइस, व्हाइल इंडियन गवर्नमेंट इज ऑलवेज गिविंग हैज केप्ट दिस लाइक आर्गुमेंट दैट इट इज फॉर द फूड सिक्योरिटी बिकॉज इंडिया हैज
का, तो WTO में इसका डिबेट चलता है, बफर स्टॉक इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड देयर आल्सो, सिमिलरली एज इज आवर MSP क्रिटिसाइज्ड। तो बफर स्टॉक पे यू नीड टू हैव कि भाई इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इरेटिक मॉनसून है, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इंडिया में कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, ऑल ऑफ दैट यू नीड टू हाईलाइट हियर कि व्हाई वी नीड अ स्टॉक रेडी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का भी इंपैक्ट इंडिया में है। अब लोकस्ट अटैक का एग्जांपल दे दो कि उस साल कितने सारे फील्ड्स एंड एवरीथिंग, अब उस ईयर अगर इंडिया ने नहीं स्टॉक किया होता अपने वीड्स को, दैट वुड हैव बीन अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर इंडिया। एक तो प्राइसेस ऊपर जाते क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ता, और जो हम देते हैं एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट टू इंट्रो पीडीएस वो नहीं दे पाते। तो इसका स्टॉक का होना, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया कितना स्टॉक का टारगेट कितना है, हमने WTO में सब कुछ बहुत क्लियरली बता रखा है, एंड देन यू कैन मेंशन दिस एंगल आल्सो कि ये किस तरीके से भाई ये इशू आता है। तो मैंने इंट्रोडक्शन इसी से स्टार्ट करा था WTO के डिबेट से, and I mentioned कि India has clearly stated that buffer stock is a part, has a legal backing which is used for जो भी हमारा under the National Food Security Act to ensure the nutrition, वहां पे सिग्निफिकेंस बता दिया बफर स्टॉक का, एंड देन इंपॉर्टेंस पे वही आ गया, फिर आप पॉइंट्स पे मेंशन कर दो कैसे क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट, वॉर्स का इंपैक्ट, तो रशिया यूक्रेन एग्जांपल, इम्पैक्ट ऑन द सनफ्लावर ऑयल जो हम वहां से लेते थे, या फिर सोयाबीन एक्सेट्रा जो वहां से इंपोर्ट होता था, दे वर नोन एज वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, तो वही वो क्या इंपैक्ट हुआ उसका, दैट यू कैन मेंशन, द वॉर्स का इंपैक्ट, क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट, पेस्ट अटैक का इंपैक्ट, ऑल ऑफ दैट यू कैन टेल, एंड देन आप बता सकते हो कैसे पीडीएस सिस्टम इंडिया एक रन करती है जिसमें पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द फूड फ्रॉम गवर्नमेंट, तो वो उसके लिए भी थोड़ा दे नीड टू हैव इट। चैलेंजेस क्या है कि जब स्टोर करते हो तो कोल्ड स्टोरेज होना, प्रॉपर यू नो दैट हार्वेस्ट करना, ट्रांसफर करना, लेकर जाना, गवर्नमेंट कब उसको लाइक देयर इज अ चेन प्रॉपर्ली कि भाई फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं, FCI प्रोक्योर कर रही है, फिर वो जाके स्टोर कर रहे हैं, बट कभी कभी लेट हो रहा है, तो अभी वी हैड प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम जिसके अंदर अभी हो रहा है कि स्टेट्स माइट आल्सो टेक इट फ्रॉम देम एंड देन स्टोर इट, अब कोल्ड स्टोरेज नहीं हो रहा है। फिर आपके पास अशोक दलवाई कमेटी की रिपोर्ट है कि कैसे एवरी ईयर कितने परसेंटेज ऑफ ग्रेन रॉट हो जा रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये एक आंसर कंप्लीट आंसर था, एंड आल्सो आई कुड से कि यहाँ पे इनफ आपके पास डेटा भी था टू गो अहेड विद इट। A very basic answer or a very basic question I would say, and easy one as well. तो ये था। Okay, again here also if you see कि ये तो यहाँ तक तो ठीक था, वर्ल्ड इज फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड सेफ फ्रेश वाटर, ठीक है, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज व्हिच कैन सॉल्व दिस क्राइसिस। अब मुझे इससे बस एक ही चीज याद आया था कि जो अभी लक्षद्वीप में एक डीसैलिनाइजेशन प्लांट गवर्नमेंट हैज पिक्ड अप और स्टार्टेड, जो एरिया था, आइडिया वाज टू प्रोवाइड फ्रेश वाटर और फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल ऑन दैट, क्योंकि वो टूरिज्म वहां बूस्ट करने की बात हो रही थी, तो दे वर लाइक दे शुड बी फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर एज वेल, तो गवर्नमेंट वाज टॉकिंग अबाउट अ डीसैलिनेशन प्लांट। सो दिस इज समथिंग दैट आई हैड इन माइंड to like one that I can talk about. Desalination is one of the technology, but they are asking briefly discuss any 3 such technologies citing their merits and demerits. अब एक तो desalination है, अब बाकी पे कहाँ जाओगे, तो मैंने दूसरा I went ahead with वही rain water harvesting because बहुत ही basic है, but anyway आपको 3 लिखने थे, but I mentioned just 2 of them. One was desalination and one was rain water harvesting. क्योंकि क्लीन वाटर यू नीड टू हैव, एक तरीका होता है इसका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, सिंस आई आल्सो हैड अ प्रोजेक्ट वर्क सो आई वेंट विद दैट। यहाँ पे द वर्ल्ड इज फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज, अब इसके लिए भी डेटा है, यू हैव एज आई मेंशन, एक तो हमारा वो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, आई हैड 3-4 डेटा ऑन वाटर रिलेटेड, तो वो उसको मैंने एक दूसरे डेटा से स्टार्टेड दिस। यू कुड हैव स्टार्टेड विद क्लीन वाटर का SDG एज वेल, आई थिंक ओशियन लाइफ वो कुछ क्लीन वाटर का एक SDG है, यू कुड हैव स्टार्टेड विद दैट एज वेल। ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज जो है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या है, आई हैड दीज 2 ओनली। अब इसके पॉजिटिव्स ऑल्सो आई टोल्ड कि भाई पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स में आ जाएगा क्योंकि आप सी में यूज करोगे, सेट करोगे, तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो इम्पैक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी विल बी यूज, तो वो थोड़े वेव्स वगैरह है जिसकी वजह से जो प्रॉपर इकोसिस्टम है एक्वेटिक वो इम्पैक्ट हो रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कर सकते हैं कि ये बहुत ही स्मॉल स्केल के लिए होगा, बहुत लार्ज स्केल आप इससे प्रोडक्शन नहीं कर सकते हो और फ्रेश वाटर एक्सेट्रा, तो इस तरीके से 2 मतलब टेक्नोलॉजीज आई कुड मेंशन। थर्ड एक रिवर्स ऑस्मोसिस भी था, दैट आई मेड इट अ पार्ट ऑफ this only, that I made it a sub part within this, but I mentioned as 1 2 3, तो reverse osmosis, rainwater harvesting and RO वही जो है आपका proper, it is RO technology only. So these are the 3 ways of generating fresh waters. अब ये है कि ये तो चलो एग्जाम्पल से पता था, ये 2 चीज तो बेसिक वही घर में जो देख रहे हैं या जो नॉर्मल देख रहे हो तो आप उसको भी कोट कर सकते थे, so that was one way of approaching this answer. So this is what I was saying कि इस बार पेपर थोड़ा सा ऐसे बहुत स्पेसिफिक पे वेंट, जिसकी वजह से if you don't have a
थ्री टेक्नोलॉजी आपको होना चाहिए एंड 3 लिखा है, ये नहीं सब कुछ की जस्ट मेंशन फ्यू टेक्नोलॉजीज यार, देयर आर सम 3 टेक्नोलॉजीज ना, ऊपर बोल रहे विद ऑल द डिटेल्स। हां, एंड देन दे आर लाइक साइटिंग देयर की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते, ना ही यू कैन गो विद सम ऐसे कि कुछ जेनेरिक सा लिख दिया। Okay, the question is what are asteroids? All right, again, what is the real threat of them causing extinction of life? What are strategies that have been developed to prevent such catastrophe? अब ये question they have linked it to science and tech, ठीक है, this is a question of science and tech only। क्या ही किया ये? हाँ, Disaster तो ये भी जोड़ दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट लेकर आ रहे हैं कि थोड़ा ये ज्योग्राफी पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत ही लिंक्ड टाइप का है। अब यू नो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वो मीटेरॉइड लेक्स वगैरह जो बनी होती है बिकॉज ऑफ द ह्यूज इम्पैक्ट दैट टेक्स प्लेस। अब इसके लिए देयर इज अ थ्योरी जो हमें पढ़ते हैं कि भाई जो डायनासोर्स वगैरह थे वाई दे बिकॉज ऑफ द एस्टेरॉइड इम्पैक्ट हुआ था एंड ऑल ऑफ दैट लेड टू एंडिंग देयर लाइफ एटसेट्रा, बट वी डोंट हैव सम स्पेसिफिक यू नो ऐसे एग्जांपल्स और स्पेसिफिक रिपोर्ट्स सेइंग दैट। तो एस्टेरॉइड्स क्या है, आई थिंक ये तो सभी बता सकते थे, ये बेसिक डेफिनेशन बेस्ड था जो आपके दीज आर बेसिकली और रॉक के मासेस होते हैं जो ऑर्बिट कर रहे होते हैं। आप क्यूपर बेल्ट के बारे में बताओ एंड ऑल ऑफ दैट एंड हाउ दे आर डिफरेंट, थोड़ा सा ही बता सकते हो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉमेट्स या जो भी, क्योंकि आईसी नहीं होते, अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में जाते हैं। तो ये हो गया आपके एस्टेरॉइड्स की डेफिनेशन तो हो जाता। हाउ रियल इज अ थ्रेट ऑफ देम कॉजिंग, अच्छा दिस वाज आल्सो देयर इन न्यूज़ बिकॉज सम ऑफ देम वाज ड्यूरिंग दैट मेंस ओनली क्वेश्चन था कि इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द अर्थ, तो उसको वो लोग मॉनिटर कर रहे थे, नॉट रिमेंबरिंग द नेम ऑफ द मिशन। कोई है एंड नासा का ही कोई मिशन है दैट इज लुकिंग अबाउट बेनू, एक हाँ दैट इज तो टेक्नोलॉजी आई थिंक टू प्रिवेंट, हाँ कि ये था कि उसको प्रिवेंट कर सकते हो। हाँ, इंडिया का भी वो था ना ऑपरेशन, आई थिंक ऑपरेशन शक्ति, ओनली एसैट वाला भी था जो उस पे, तो दे वर सेइंग कि वी कैन यूज दिस फॉर टारगेटिंग द एस्टेरॉइड्स एज वेल। हाँ, तो एस्टेरॉइड्स क्या है ये तो यू कैन मेंशन। हाउ रियल इज द थ्रेट, तो आप बता सकते हो कि भाई कि जो एस्टेरॉइड्स हैं दीस आर फ्रीली मूविंग, इनका क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेविटी नहीं होता तो यस दे कैन डिस्प्लेस फ्रॉम देयर ऑर्बिट एंड देम कमिंग टुवर्ड्स जो भी है। कुछ एग्जांपल ऑफ मीटेरॉइड्स का दे ही सकते थे, कुछ लोनार लेक वगैरह है जो एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट, तो दिस इज to an extent it is a threat that exists, but हमारे पास ऐसे है कि कुछ टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे वही आप बता रहे हो डार्ट टेक्नोलॉजी लिख दो या फिर एसैट जिसको गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू से अगर इन केस ऐसा होता है तो वी कैन अप्लाई इट इन दैट रिस्पेक्ट एज वेल। तो ये था कि यू नीड टू हैव सम, दैट इज व्हाई मुझे ऐसा स्पेसिफिकली लगा इन बोथ द टर्म्स की जीएस पेपर 3 इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, इफ यू नो यू राइट, इफ यू डोंट, एंड आई इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि if you write a good answer you get a good score, and if you write a very generic answer you really get a bad score. My answers were very generic in GS paper 3, I accept, I agree, so that's how the scores were. What is disaster resilience? How is it determined? Describe various elements of resilience framework. Also mention the global Sendai framework. अच्छा, अब ये जो global Sendai framework है ये मैंने कहाँ से किया था, उत्कर्ष द्विवेदी सर का मैंने फॉलो किया है हमेशा से, his notes और उनका ब्लॉग जो भी है, तो ब्लॉग पे इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट का बस एक पेज में नोट्स दिया हुआ है। he has given a set template कि जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है तो you can start with IPCC 6 assessment report, you can start with Prime Minister's 10 point agenda, or you can start with the जो भी Sendai फ्रेमवर्क में हमारे टारगेट्स हैं दैट दिस ठीक है, एक और आई थिंक योगो टारगेट और समथिंग, हाँ वही, तो 2-3 हैं जिसके दैट ही हैज गिवन। सेंडे फ्रेमवर्क उन्होंने 6 आई थिंक जो हैं आपके उसको निमोनिक बना के लिखा हुआ था, सो आई जस्ट मेमोराइज्ड इट फ्रॉम देयर ओनली। अब भी मुझे नहीं याद है क्या है वो टारगेट्स, बट आई हैड मेमोराइज्ड इट फ्रॉम देयर, इट इज देयर, अगर कोई भी चेक करेगा सर के ब्लॉग यू विल गेट देयर। सो फर्स्ट दैट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज डिजास्टर रेजिलियंस, ये डेफिनेशन ही है जो आपको देनी पड़ेगी, यू विल हैव टू डिफाइन दिस, ठीक है। अब ये डिजास्टर रेजिलियंस का मतलब क्या है कि वी नो दैट देयर आर सर्टेन नेचुरल डिजास्टर्स जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट इज जापान, दैट हैज बीन फेसिंग सुनामी आप बोल लो या फिर अर्थक्वेक्स बोल लो, बट दे आर नॉट ट्राइंग और शिफ्टिंग टुवर्ड्स डेवलपिंग सच इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज्यादा इंपैक्ट ना हो रहा हो डिजास्टर से। So that is what disaster resilience is, means you are developing such kind of resilience in the infrastructure in the society such that whenever there is a disaster a huge impact is not seen और बहुत ज्यादा loss of life, property ये चीजें ना हो रही हो। Now how do we determine it? अब तो वही हो जाता है कि भाई आप vulnerability mapping करते हो, उसके बाद आप थोड़ा सा infrastructure mapping कर लेते हो and you're watching कि भाई population वगैरह, हाँ ये सब चीजें कर लो तो थोड़ा उससे आप determine कर सकते हो कि किस एरिया में having a settlement is much better and all. Describe various element of the resilience framework. अब इसका होता है कि भाई it starts from पहले आप उसको assess करते हो, then you go for mapping, then you go for complete, तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर है जो साइकिल के फॉर्म में चलता है until the new infrastructure or the complete that a colony is not settled there. Then mention वो 6 targets हैं, I can remember this but I don't remember what of them were there, वो 6 मैंने ऐसे mention कर दिए थे that are there. तो it was also a very theoretical question
टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट थ्योरेटिकल था बट प्रेडिक्टेबल भी था, क्योंकि डिजास्टर जब आप पढ़ते हो तो डिजास्टर रेजिलियंस इज अ पोस्ट डिजास्टर मेजर जो होना चाहिए फॉर इंश्योरिंग दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन डिजास्टर हिट्स तो उसका इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा कम हो उस पे. So this was one question. Flooding, okay, in urban areas is emerging climate induced disaster. It is talking about urban flooding. It's a repeated previous year question. GS1 में repeat हुआ. हाँ, तो अर्बन फ्लडिंग की बात कर रही है. डिस्कस द कॉज, you have to mention the cause, mention the features of two such major floods in last 2 decades in India. तो चेन्नई का is very famous, जो floods होते हैं इसके, I think पुणे और मुंबई में भी there is very common. तो ये कुछ ऐसे बैंगलोर, Chennai, Pune, these are some very important. Describe the policies and framework in India that aim at tackling such floods. तो पहले जो flooding, ये urban flooding से related था, तो you could have given an introduction आराम से, या तो explain भी कर सकते थे आप किसी, क्योंकि example already पूछा हुआ है, so it was not a wise decision to already start with an example. So that's why I went with defining urban floods. आप इसमें terms use करो of something called as urban heat islands. When you're defining it, use term like how urban heat islands, they trap so much of heat, ठीक है, and absence of, फिर उसके बाद that leads to रेनफॉल, बहुत ज्यादा इंसेसेंट रेनफॉल लिखो. उसके बाद बताओ कि लैक और एब्सेंस ऑफ स्पॉन सिटीज इज नाउ लीडिंग टू, भाई वाटर कहाँ जाएगा, जब बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ है तो वो वाटर वहां पे कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होगा, लीडिंग टू सम ऑफ एन इशू दैट इज नोन एज. अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं? अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन कर लो, एक्सेसिव जो लोगों का रैपिड माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल टू अर्बन एरियाज, ओवर क्राउडिंग ऑफ सिटीज हो गया, लैक ऑफ डेवलपमेंट, पुश एंड पुल फैक्टर्स में करके आप दो तरीके से उसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते थे कि भाई ये डिजास्टर में अर्बनाइजेशन का जो इम्प्रॉपर है डेवलपमेंट, दैट इज बिकमिंग वन ऑफ द रीजन. सेकंड इज कि ओवर कंजेशन हो रहा है, तो एयर पास करने की मतलब passing of air is not there, concrete जो use कर रहे हैं, something that is trapping more amount of heat. अब जो urban areas है उसमें we see there are more and more industries, वो use कर रहे हैं appliances like ACs, they have data systems, computers, AI वगैरह. अब ये क्या है, बहुत ज्यादा heat generate करते हैं ये पूरे machines वगैरह, now they are also creating, और pollution तो है ही है, तो now that is creating a complete heat island like situation that leads to incessant rainfall in a very small period of time. देन उसके बाद क्योंकि देयर इज एनक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड्स, देयर इज कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ द लैंड, तो वाटर डज नॉट फ्लोज अवे और सीप्स अवे इजीली, लीडिंग टू फ्लडिंग. तो कॉजेस तो बहुत आराम से हम लिख सकते थे. मेन एग्जांपल में मैंने चेन्नई का एग्जांपल दिया था एक, और एक मैंने बैंगलोर और पूरे फ्लड का एग्जांपल दिया था. ओके, देन डिस्क्राइब द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क इन इंडिया दैट एम्ड एट टैकलिंग. अब क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक अर्बन फ्लडिंग के लिए आई हैड नो आइडिया क्या है, बट आई देन वेंट अहेड विद कैसे गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग स्पॉन्ज सिटीज. देयर वाज अ स्कीम, नगर वन स्कीम जो थी अर्बन फॉरेस्ट्री के बारे में, जो वो बात करने की फॉरेस्ट डेवलपमेंट अब करो. सेकंड थिंग आई आल्सो मेंशन्ड अबाउट हाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डेवलप द सैटेलाइट टाउन्स सो दैट पीपल बेटर सेटल देयर देन मूविंग. फिर आप कुछ स्कीम्स बताते हो जो रूरल एरिया में मोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि रोड्स के लिए आदर्श ग्राम हो गया, या फिर रूरल सड़क योजना हो गया, ग्राम सड़क योजना. तो वो सब मैंने मेंशन किया टू शो कि भाई पीपल बेटर क्लाइमेटिक कंडीशन, बेटर अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड, दे विल सेटल देयर. तो गवर्नमेंट के जो रूरल इनिशिएटिव्स हैं दैट आई मेंशन, एंड सम ऑफ द अर्बन एरियाज में क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव्स थे दैट आई मेंशन. So this was about the question number 18. Now if we move to another question, that is question number 19. It is now again comes to question of the internal security. India has a long and troubled border with China and Pakistan, fraught with contentious issues. Examine the conflicting issues and security challenges along the border. Also give about development being undertaken in these areas in the border development program and border infrastructure management scheme. अब तो उन्होंने दो चीज मेंशन करी. नोट्स ही मैंने इस तरीके से बनाए थे, जस्ट सपोज यू कैन डू वन थिंग इज यू कैन ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा करके आपका ये हो गया. अब ना यू कैन मेंशन भाई इंडिया की जितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान मेंशन कर लो, इनके साथ हमारा माइग्रेशन का इशू है, बॉर्डर का इशू है, वाटर का इशू है, ठीक है, फिर ये सर क्रीक का इशू है, तो ऐसे 3-4. चाइना के साथ बॉर्डर का इशू है हम लोगों का. फिर यू ऑल्सो हैव सम इशूज रिलेटेड टू जो ये इंक्रोचमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, नेपाल में काला पानी डिस्प्यूट है या जो भी है, आप म्यांमार में क्या क्या इशूज है, इधर आपका क्या क्या इशूज है. तो एक तरीके से आई हैव प्रिपेयर्ड दिस मैप इन माय नोट्स इटसेल्फ. तो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग, तो इंडिया चाइना आप इस तरीके से बना सकते हो, दे आर हैविंग fraught with contentious issues. तो अब you have to examine the conflicting issues, सिक्योरिटी चैलेंजेस अब्रॉड. तो जितने इश्यूज इन दोनों कंट्री के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, कुड हैव मेंशन. यहाँ पे मैंने ड्रग्स भी मेंशन करा है पाकिस्तान में, बॉर्डर इश्यूज भी, इलीगल माइग्रेशन भी, इंसर्जेंसी भी, फिर इंसर्जेंसी के साथ ट्रैफिकिंग भी, उसके साथ जितने भी हैं आपका, दैट ऑल ऑफ दैट कुड हैव बीन मेंशन्ड हियर. 5-6 इश्यूज तो इधर हो गए थे, यहाँ बॉर्डर का इश्यूज हो गया, सिक्योरिटी चैलेंजेस हो गए, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो गया, दैट इज ऑल्सो लीडिंग टू इश्यूज. यहाँ पे हम लोग का इंसर्जेंसी जो फ्यूल करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज में, दे आर ट्राइंग टू क्लेम द अरुणाचल वाले कुछ विलेजेस वगैरह को. सो ऑल ऑफ दैट
दैट आई मेंशन्ड इन थ्रू अ डायग्राम, सो दैट ये प्रॉपर्ली आप हेडिंग भी कर दोगे, डायग्राम में वो हाईलाइट भी हो जाएगा. सो उसके बाद जब एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, देन यू कुड हैव लाइक हाईलाइटेड कि बॉर्डर इश्यूज के क्या चैलेंजेस हैं, या वाटर रिलेटेड इश्यूज. यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का इशू चल रहा है, यहाँ पे आपका इंडस का इशू चल रहा है. सो ऑल ऑफ दैट आई हैड गिवन इन डिटेल, थोड़ा आईआर का पर्सपेक्टिव देके. But then they are asking, give out development that has been taken in this area. अब जैसे कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जैसे पीएम डिवाइन स्कीम हो गई, डेवलपमेंट ऑफ चेक पोस्ट हो गए, यहाँ पे जो आपका सीआईबीएम है, वहाँ आपका बॉर्डर मैनेजमेंट, हाँ, तो वहाँ पे हो रहा है कि टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, सीसीटीवी यूज कर रहे हैं, या अभी जो गवर्नमेंट ने एफएमआर वगैरह के थ्रू इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, बॉर्डर डिमार्केट करने की हम कोशिश कर रहे हैं. तो ये कुछ चीजें थी, क्योंकि स्पेसिफिक्स और इस प्रोग्राम के तो आई डिडंट न्यू, बट डेवलपमेंट्स क्या है वो आप बता सकते हो कि आइडिया क्या होगा टू प्रिवेंट द टसल और द कंफ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन. चाहे वहां पे टॉक्स के थ्रू वो कर लें, चाहे वो बॉर्डर टॉक्स के थ्रू कर लें. अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, या फिर मोर एंड मोर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट इज नाउ आल्सो मूविंग एंड डेवलपिंग विलेजेस. वो कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें दे आर डेवलपिंग विलेजेस अक्रॉस द बॉर्डर. इवन इन दिस एरिया देयर वाज पीएम डिवाइन, जिसके थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स में भी दे आर ट्राइंग टू गो एंड डेवलप एरियाज सो एज टू मेक श्योर. विलेज प्रोग्राम ही है. हाँ, अच्छा, बॉर्डर विलेज प्रोग्राम. तो दैट इज समथिंग लाइक दैट. तो वो कुछ इनिशिएटिव्स आप देके बता सकते हो कि कैसे गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द प्रेजेंस इन द बॉर्डर एरियाज सो एज टू अवॉइड कि जितना वो मतलब इट इज जितना अनऑक्यूपाइड, मोर इजी इट बिकम्स चांस फॉर द कंट्रीज टू सीप इन एंड टेक. फर्स्ट विलेज नॉट लास्ट विलेज. हाँ, तो इस वजह से द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेक, तो कुछ इनिशिएटिव्स के थ्रू दिस वाज आंसर. Social media and encrypting messages service pose a serious security challenge. What measures have been adopted at various at level to address the security implication of it? ओके, ये क्या कहने कि जो हम यू माइट हैव सीन व्हाट्सएप पे वो जो लिखा होता है ना एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड, तो ये होता है कि प्राइवेसी प्रोवाइड करने के लिए होता है, बट दैट कैन आल्सो सर्व एज अ सिक्योरिटी थ्रेट, बिकॉज देन द गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सेस जो भी मूवमेंट, जो डेटा का मूवमेंट हो रहा है ऑन द तो वी हैव इसके लिए पूरे स्कीम्स हैं कुछ तो प्रॉपर, जो गवर्नमेंट ने जितने भी इनिशिएटिव्स रख रखे हैं टू डिजिटली कीप अ चेक ऑन इट. आई थिंक देयर आर सम 9-10 स्कीम्स. आई हैड प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ दैट, तो आई हैड दोस इन माइंड. अभी तो I can't recall right now. तो कुछ थे. सोशल मीडिया एंड इंक्रिप्टिंग मैसेज सर्विसेज आप हाईलाइट कर सकते हो कि प्राइवेसी के लिए ये दिए गए हैं, लेकिन उसको सिक्योरिटी थ्रेट है, बिकॉज आजकल द डिजिटल स्पेस हैज बीन यूज्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द टेररिस्ट हो गया, या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए हो गया, ड्रग डीलिंग के लिए हो गया, डार्क स्पेस, डार्क वेब जब से आ गया, तो दैट हैज बिकम अ रियली डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू ट्रेस द ओरिजिन एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये आप बता सकते थे कि ये इश्यूज हैं, आप इश्यूज इस तरीके से हाईलाइट कर सकते थे. व्हेन वी टॉक अबाउट द मेजर्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन, देन देयर आर सर्टेन इनिशिएटिव्स, वो नेटग्रिड हो या जितने भी, आई थिंक देयर आर सेवरल इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं साइबर सिस्टम डेवलप करने के लिए समथिंग. हाँ, तो देयर आर सो मेनी ऑफ देम. यू कुड हैव मेंशन्ड दोस इनिशिएटिव डायरेक्टली सो एज टू एड्रेस द डिजिटल स्पेस दैट इज बेसिकली ब्रॉट फ्रॉम सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में एक और इशू होता है ऑफ एनोनिमिटी. There is also an issue कि भाई there is no number of limit of minimum number of accounts a single email ID can create. तो भाई लोग एक ही email ID से 10-10 fake accounts create कर रहे हैं, then there is lack of traceability until unless you don't go to enforcement agencies. और वो कोई common people are not able to avail that. तो ये बहुत एक privacy का भी issue है और all of that. तो ये highlight कर सकते थे and then suggest other remedies to address the problem. तो एक हो जाता है digital hygiene जिसको कहते हैं, there should be digital hygiene among us also. थोड़ा being vigilant that which links you are clicking on or what is going on. तो थोड़ा ये सब भी चीजें हैं that can help us to prevent. तो इस तरीके से एक बहुत ही generic but with specific details आप ये आंसर मैंने लिखा. स्ट्रक्चर वही होगा, सोशल मीडिया का थ्रेट अलग और इनक्रिप्टेड मैसेज का अलग. हाँ, दिस गोज अहेड विद इट कि भाई ये दो चीजें हैं, इन्होंने खुद ही लिखा है और इसको सिक्योरिटी से लिंक कर दिया. आप इसको पहले प्राइवेसी के लिए बताओ कि भाई सोशल मीडिया पे इनक्रिप्टेड मैसेजेस जो हैं वो प्राइवेसी के लिए दिए गए हैं, बट दैट creates why because now digital space is open to other non-state actors as well, जिसकी वजह से it has become an issue. फिर आप एग्जांपल्स भी दे सकते हो किस तरीके से रिसेंट टाइम में डेटा, जैसे मुंबई का जो पावर ग्रिड था उसको लेके जो इश्यूज हुए थे या जो भी, तो ये सब चीजें प्लान्ड होती हैं, दे डोंट हैपन इम्प्रॉम्प्ट. ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा विजिलेंस इज रियली रिक्वायर्ड. तो वो चीजें हैं जो मेंशन. परफेक्ट राइट. सो एज यू सो कि भाई जीएस3 का पेपर जो है इट इज अ वेरी टेक्निकल पेपर और उसमें बहुत स्पेसिफिक्स पूछ रहा है. अब तो मतलब और भी कि यही टेक्नोलॉजी इतनी बताओ, उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, उसके फीचर्स बताओ, तो इट इज गेटिंग very specific in sort of terms, but still if you like do the answer writing correctly, the studying correctly, तो आप एक certain score इसमें लेके आ सकते हो, that is for sure, है ना. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना, खासकर जो मेंस इस बार लिख रहे हैं वो ROI जरूर देखना कि कितना आप इस पे इन्वेस्ट करना चाहते हो. देन फॉर द नेक्स्ट ईयर मेंस वाले लोग के लिए तो टाइम है, तो यू कैन प्रिपेयर थॉरली, दैट कैन बी डन. थोड़ा इसमें ये कि ट्राई टू कीप इट एज डायनेमिक एंड एज करंट आल्सो एज पॉसिबल. और बिकॉज अब कभी-कभी होगा कि यू विल नॉट हैव अ कंप्लीट आंसर्स फॉर द गिवन क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड, बट कोशिश करो कि एटलीस्ट आप उस डायमेंशन पे अगर आप
उसको elaborate कर पा रहे हो, तो even then at least one thing you do is that you don't leave the paper blank. You are at least answering something which is required. तो वो कर सकते हैं in and around the theme, that might help. चारों जीएस पेपर में अगर कोई जीएस पेपर है जिसमें सबसे ज्यादा कीवर्ड्स से क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस के डायरेक्ट कीवर्ड से क्वेश्चन आते हैं, तो वो जीएस पेपर 3 ही है। तो उस कीवर्ड्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो कि जो क्वेश्चन एटलीस्ट आता है उसमें बहुत अच्छा स्कोर मिले, और जो नहीं आ रहा है उसमें तो फिर मतलब देयर इज ओनली लिमिट दैट यू कैन डू। वो आप कर सकते हो बिकॉज बहुत ज्यादा तो यू कांट गो फॉर इनोवेशन हियर इन दिस पेपर, बट यही है कि बट एनीवेज वी आल्सो हैव स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग 110, हु आर स्कोरिंग 15, तो मतलब अच्छे स्कोर्स भी मिल रहे हैं। डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि दे हैव बेटर होल्ड और कमांड ओवर द टॉपिक्स। तो ये है कि अपने एंड से तो पूरी कोशिश करना है, ये नहीं गिव अप कर देना है कि दैट जीएस3 में मार्क्स ही नहीं आ रहे तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बहुत कम आ जा रहे हैं, 50s में भी आते हैं। तो आप ये rather I think what I suggest is you can focus like depending more on economics, more on agriculture, more on internal security. अगर आप इन तीन पे भी थोड़ा कमांड बनाने की कोशिश करोगे ना, you will have, because environment and science and tech तो वो वेग जाता है, beat prelims, beat mains, तो उस पे आप मतलब अगर आप एनवायरमेंट और साइंस टेक को हटा भी दो तो भी 13 से 14 क्वेश्चंस तो बाकी एरिया से ही आ रहे हैं ना, तो वो डूएबल बहुत ज्यादा है क्योंकि वो सिलेबस से डायरेक्टली आ रहे हैं। तो बाकी 5-6 जो है उसमें एक चीज जो मेरे को बहुत ज्यादा समझ में है वो ये कि जो चीज न्यूज में बहुत ज्यादा है वो एनवायरमेंट में पूछ लेगा, वो साइंस एंड टेक में पूछ लेगा, तो वहां पे वो ट्राई करना है कि कवर किया जा सके। राइट, great, thank you so much for watching. I hope it was helpful. Definitely it was. Thank you so much, Shakti. Thank you so much. And thank you so much for being here. We'll do the GS4 in the next session. Thank you so much, everybody. All the best. Thank you so much.